Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? The next here is important agro-based industries. There is important agro-based industries. Here, textile, sugar, paper, and vegetable oil industry are some of the example of agro-based industry. You know that what is the agro-based industries? The agro-based industries here, textile, sugar, paper, vegetable oil industries are some example of agro-based industries here. This industry use agriculture product as their raw materials, and textile industry is the largest industry in an organized sector. The textile industry is the largest industry in a organized sector. It's a comprise of the first year of cotton textile and second year woolen textile and third year silk textile and fourth year synthetic fiber and fifth year jute textile industries here. Textile has been a major component of the industrial sector. It is account for nearly a fifth of the industrial output and a third of the export earnings. In terms of the employment is a come next only to be agriculture sector here. The first point here, cotton textile industries here. The cotton textile industries, what is important here? The industrial development in India is began with the establishment of first successful modern cotton textile mill at Mumbai in 1854. The 1854 is the most important period of time the development of cotton textile industries. Since there industries has a witnessed a phenomenal growth. The number of mills increasing from 378 in 1952 to 1782 by March 1998. There is important and cotton textile has an important place in the economical of country. It is a provide employment opportunity to a large number of people. About one fifth of the total industrial labor is absorbed by these industries. The next production here, the production is a cotton textile industry, a comprised of a three sector. Three sector is here most important: mill sector, handloom, and is a power loom. There is a cotton textile industry comprised of three sector here. I repeat again: mill sector, handloom sector, and there is a power looms. There is the most important. The share of large mill is a hand looms and the power loom sector in their total production of cotton cloth in a 1998 to 99 was a 5.4 percentage and 20.6 percentage and 74 percentage respectively here. The cloth production of cotton textile increasing from a 421 crore square meters in 1950 to 51 to 1794.9 crore square meter in 1998 to 99. There is a most important growth here. The cotton and synthetic fiber textile industries has made a is a term thus progress per capita ability of cloth from both the types was of 15 meters only in a 1960 to 61. In the year 1995 to 96, it has risen to be 28 meters. And this has embedded as to export cotton yarn, cotton fabric, and cotton synthetic garment on a large scale. In 1995 or 96, we earned a $2.6 million by there is a export. There is important here. The 1995 to 96, we are earned a $2.6 million by their export. There is important here. The next year, distribution. A cotton textile industry is one of the most widely distributed industry in our country. These mills are located in a more than 88 centimeter in different part of country. But majority of cotton textile mill are still located in a cotton growing area of the Great Plain and Peninsular India. That is important here. In this map, there is a most important map. Show your screen. There is a India center of textile industry.
You know that there are all over India, there are textile industries of here. There is Amritsar, Pawara, as Ludhiana, Lucknow, there is important, and Delhi, Firozabad, Kanpur, Patna, Kotas, and there is Jodhpur, and the Pune, Hyderabad, Belarus, and Bingam, the Dubai. There is the most important Dubai, Lis, and the Mysore, and there is a Pondicherry, Chennai. There is the most important shown on your screen. There is a center of textile industries here. There is all over India of here present and the important production on here. Maharashtra is the leading producer of cotton textile in the country. There is important. Maharashtra is the leading producer of cotton textile in a country. Mumbai is their major center of textile mills here. About a half of cotton textile mill are located in Mumbai alone. It is therefore rightly called as a cotton pulse of India. And Solapur's and Kolhapur's, Nagpur, Pune, Isangabad and the Jayagons as the other important center in Maharashtra here. Gujarat, which is ranked second in the production of cotton textiles, and Allahabad is their major center of the state, and Surat, Bharuch, Vadodara, and Bhavnagar and the Rajkot are other centers in the state. Tamil Nadu has emerged as an important producer of cotton textile in a southern state, and Kambi both is on the important center in a state, and Tiruvallur and the Chennai, Madurai and the Tirupalli is the same is the Tanjore, and there are other important center here. In Karnataka, cotton textile industry is a concentrated is a Bangalore, Mysore, Bengoms, and the is Gulbarga and the Kanpur, Ethawa and Nagar, Varanasi and Hathras, an important center in Uttar Pradesh. In Madhya Pradesh, this industry is concentrated at the Indore and Gwalior, and Havra, the Sherapura and the Murshidabad are the important cotton textile center in West Bengal. Rajasthan and Punjab, Haryana and Andhra Pradesh are the other states producing a cotton textile here. And the following are the factor localization of textile industries in Ahmedabad and Mumbai and Pune regions here. The first here, ability of raw material. There is an important point here. Note your notebook. There is ability of raw material. A large amount of cotton is growing in this belt. And second here, ability of capital. The Mumbai Ahmedabad and Jaipur as a place where a capital for a investment is easily available. And second here, means of transport. This region is well is concentrated with the rest of India by the road and railways. It therefore the facility and transportation of finishing product. And fourth here, accessibility to be market. There is an important point here. Is the Maharashtra and Gujarat has a large market to be sell a textile product here, and developed a means of transportation help in a movement of textile product to be other market center as well as their foreign market. Nowadays, by their market has become a dominant factor is determining the location of cotton textile industry. There is a most important point here, notable point. And the next here is the nearness of ports. There is an important point. The Mumbai is a port is a facility there import of machineries and good quality of cotton from awarded and export of this finishing product here. And sixth here, cheap labor. There is an important point. Cheap labor, cheap and skilled labor is easily available from their surrounding area. And last point is important, ability of power. Ability of power, cheap and sufficient power easily available here. There is a most important here. यहाँ पर अगर हम बात करें तो कृषि आधारित उद्योग, देखिए कृषि आधारित उद्योग काफ़ी मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि आधारित उद्योग होना एक स्वाभाविक बात बना देती है। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत कहते हैं वस्त्र, चीनी, कागज एवं वनस्पति तेल इत्यादि जो है इत्यादि कृषि पर आधारित उद्योग आते हैं। यानी इसमें वस्त्र आते हैं, चीनी आते हैं, कागज आते हैं एवं वनस्पति तेल आते हैं जो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत है। कहते हैं ये उद्योग कृषि उत्पादों को अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग सदैव करते ही रहते हैं जो कि जरूरी है। संगठित उद्योग क्षेत्र में वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है
अगर संगठित क्षेत्र की बात करें तो वस्त्र उद्योग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपना स्थान, क्योंकि आपको पता है कि वस्त्र का जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगर इसके अंतर्गत हम देखें वस्त्र के उद्योग के अंतर्गत, तो इसमें सूती वस्त्र आ जाता है, ऊनी वस्त्र आता है, रेशमी वस्त्र आता है, कृत्रिम रेशे वाले वस्त्र आते हैं और जूट उद्योग वाले वस्त्र आते हैं। तो इसको 5 भागों में जो है विभक्त किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे क्वालिटी भी अलग अलग ही होती है। कपड़ा उद्योग जो है क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक है, यानी कपड़ा उद्योग जो है औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक के रूप में देखा जा सकता है। कुल उद्योग उत्पादन का जो है 5वां हिस्सा वस्त्र उद्योग उत्पादन का ही है, यानी कुल उद्योग की हम बात करें तो 5वां बड़ा हिस्सा जो है आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ वस्त्र उद्योग का ही है, तथा विदेश मुद्रा अर्जन में इसका 1/3 योगदान है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है कि जो विदेशी मुद्रा हमारे मिलते हैं, हमारे पास आते हैं और जिससे हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, उसका 1/3 योगदान सिर्फ जो है ये वस्त्र उद्योग से ही आते हैं। और रोजगार उपलब्ध कराने में कृषि उद्योग के बाद इसी का स्थान है, यानी रोजगार में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कृषि क्षेत्र का है, जहाँ पर सभी मजदूरों को जो है काम बेवकूफ़ी मिल जाता है। और दूसरे नंबर पर बात करें तो जो है ये आपका जो है ये वस्त्र उद्योग वो दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर कृषि उद्योग आता है और दूसरे पर वस्त्र उद्योग आता है, जिससे लोगों को रोजगार बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं कपड़ा और सूती उद्योग की बात करें तो सूती कपड़ा उद्योग का जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसमें जो है हर एक पहलू पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सूती कपड़ा उद्योग के अंतर्गत यही आता है कि भारत में उद्योग विकास का आरंभ आपको पता ही है कि 1854 में मुंबई आधुनिक सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना से हुई। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि भारत में कहते उद्योग का जो शुभ आरंभ हुआ वो सूती कपड़ा उद्योग से ही हुआ। अब भारत में पहला औद्योगिक विकास आरंभ जो हुआ 1854 में मुंबई में लगाई गई पहला सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग। तो ये जो है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं तब से यह उद्योग जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता ही जा रहा है और वर्ष जो 1952 में इसकी कुल जो है 378 उद्योग इकाई थी, यानी 378 इकाई थी, जो मार्च 1998 में बढ़कर जो है 1998 हो गई। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, जितनी सरल है उतने ही बढ़कर ये हो भी गई, यानी 1998 था। तो ये जो है 1998 में भी हुई, यानी मार्च 1998 की गणना करें तो यहाँ पर 1998 हो गई। काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों का रोजगार उपलब्ध भी कराता है। देश के कुल औद्योगिक श्रमिक संख्या जो है 1/5वां बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग क्षेत्र में ही लगा हुआ है, यानी देखा जाए 1/5वां हिस्सा सारे के सारे जो मजदूर हैं कपड़ा उद्योग से ही अपना जीविका चला पा रहे हैं। तो पहले तो यही आता है उत्पादन। देखिए सूती कपड़े का सबसे पहले उत्पादन के बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे कि वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 क्षेत्र होते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 क्षेत्र हैं, एक कपड़ा मिल क्षेत्र, ये हैंडलूम्स, हथकथक एवं पावर मूल। और सन जो है 1998 से 99 में जो है कुल सूती वस्त्र उत्पादन में बड़े कारखाने हैंडलूम्स तथा पावर लूम का भाग क्रमश जो है 5.4% से 20.6% एवं 74% था। तो आप समझ सकते हो कि बड़े कारखानों में हैंडलूम हो, पावर लूम हो, इनकी कितनी महत्वपूर्ण योगदान थी। सन 1950 से 51 में सूती वस्त्रों का उत्पादन जो है 421 करोड़ वर्ग मीटर था, यानी देखा जाए 50 से 51 में 421 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 1998 से 99 में बढ़कर 1794.4 करोड़ वर्ग मीटर तक पहुंच गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात के ऊपर इशारा कर रहा है। सूती धागे एवं कृत्रिम धागों पर आधारित वस्त्र उद्योगों ने जबरदस्त उन्नति की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सूती उद्योग और कृत्रिम उद्योग ने बहुत काफ़ी जो है यहाँ पर उन्नति की है और दोनों प्रकार के धागों से निर्मित कपड़ों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी करवाई गई, जो 1960 से 61 में केवल 15 मीटर ही थी और 1995 से 96 में बढ़कर 28 मीटर प्रति व्यक्ति हो गई।
अब देखिए पहले 15 प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति का अर्थ आप समझते ही होंगे कि जितने देश में जनसंख्या है उसमें हर एक व्यक्ति को जो था 60-61 के बीच में सिर्फ 15 मीटर ही कपड़े मिल पाते थे। लेकिन 1995 से लेकर 96 के आसपास जो है 28 मीटर हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की ओर दर्शा रहा है कि प्रति व्यक्ति जो थी 28 मीटर हो गई। परिणाम स्वरूप सूती धागों का सूती वस्त्रों तथा कृत्रिम धागों से निर्मित वस्त्रों का बड़े पैमानों पर निर्यात भी होने लगा और इसके निर्यात से हमने सन 1995-96 में कहते हैं 2.6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित किया। तो आप समझ सकते हो कि वस्त्र उद्योग का हमारे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान है और कितना महत्वपूर्ण स्थान भी है। उसके पश्चात आता है वितरण। देखिए इसकी किस प्रकार जो है वितरण है, तो ये भी जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग देश के सभी भागों में फैला हुआ है और इस उद्योग के कारखाने भारत के विभिन्न भागों में जो है 88 से अधिक केंद्रों में जो है व्यवस्थित है। परंतु अधिकतर सूती वस्त्रों का कारखाने आज भी उन क्षेत्रों में ही है जहां कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इसमें जनरल सी बात है कि जिस चीज़ की अगर जहां पर जैसे सूती वस्त्र है तो सूती से बनने वाले धागे जैसे बनते हैं उसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। तो कपास जहां उत्पन्न होता है वहीं पर जो है इसको लगाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्षेत्र उत्तरी भारत के विशाल मैदान क्षेत्र और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भागों में स्थित है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को अगर हम मैप के अंतर्गत समझें तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है आज के समय में हर क्षेत्र में आपको बेखूबी नज़र आ रहा होगा। कहते हैं अगर उत्तर से पश्चिम की तरफ जाए, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए तो इसमें कोई जो है स्थान खाली नहीं दिख रहा होगा। इक्का दुक्का राज्य जो है जहाँ पर वस्त्र उद्योग के केंद्र नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन हर क्षेत्र में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें अगर हम ऊपर की बात करते हैं अमृतसर हो, लुधियाना हो, पानीपत हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, कानपुर हो, ग्वालियर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, अहमदाबाद हो, बड़ोदरा हो, भावनगर हो, सूरत हो, मुंबई, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, बेलगांव, हुबली, बेलारिस, देवनगरी, बेंगलुरु, मैसूर, ठीक है, और पंडिचेरी, चेन्नई, कटक, विष्णुपुर, मसीराबाद और पटना। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ देखा जाए तो आपको जो है आंध्र प्रदेश के साइड कोई नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा और इक्का दुक्का और भी स्टेट है जहां पर नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में जो है अब वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित है। तभी तो देखा जाए तो 1/5वां भाग जो है जो रोजगार इसी से प्राप्त होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1/5वां भाग जो है सिर्फ हमें वस्त्र उद्योग से ही जो है नौजवानों को काम मिल रहा है और उनकी जीविका चल रही है। तो समझ सकते हो कि ये उद्योग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हर एक नौजवान के लिए। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में हमारे देश का अग्रणी राज्य है। यानी महाराष्ट्र को देखा जाए तो सूती वस्त्र जो है उत्पादन में हमारे देश का अग्रणी राज्य है। मुंबई सूती कपड़े के कारखानों का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। यानी मुंबई जो है क्योंकि स्थापना मुंबई में ही हुई थी पहले टाइम, तो इसीलिए जो है मुंबई सूती कपड़े के कारखानों के प्रमुख केंद्र है। क्योंकि लगभग आधे सूती कपड़े निर्माण करने वाले कारखाने मुंबई में ही स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंबई जो है बहुत काफ़ी महत्व स्थान रखता है और यहाँ पर बहुत से सूती कपड़ों का जो है मिलें लगाई गई है। इसलिए मुंबई को जो है कॉटन्स पॉलिश्ड ठीक ही कहा गया है। इसलिए मुंबई को क्या नाम दिया गया है? कॉटन पॉलिश नाम दिया गया है और इसका नाम सही भी रखा गया क्योंकि सारे के सारे कारखाने जो है मैक्सिमम कारखाने मुंबई में ही स्थित है। मुंबई के पश्चात सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव इत्यादि शहर भी महाराष्ट्र राज्य के सूती कपड़े निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता है। कहते हैं सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात देश में दूसरा स्थान पे आता है। यानी मुंबई अगर पहला स्थान पे है तो गुजरात जो है दूसरा स्थान पे आता है और अहमदाबाद इस राज्य का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सूरत, भट्टोर, बड़ोदरा, भावनगर तथा राजकोट राज्य के अन्य भी केंद्र हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। यानी तमिलनाडु भी अब अपने आप को जो है सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्णता दर्शा रहा है। कोलम्बटूर इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। यानी कोलम्बटूर सबसे महत्वपूर्ण है किसका? तमिलनाडु जो है उसका सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में। और इसके अलावा जो है तिरुनेलवेली, चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सलेम तथा तांजोर जो है राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
कर्नाटक राज्य में सूती वस्त्र उद्योग में बेंगलुरु, मैसूर, बेलगांव और गुलबर्गा नगरों में केंद्रित है। और देखिए उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग जो है कानपुर, इटावा, मोदीनगर, वाराणसी, हाथरस शहरों में केंद्रित है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग जो है इंदौर और ग्वालियर शहर में भी केंद्र है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के जो है अंतर्गत हावड़ा, श्रीरामपुर, जो है मुरादाबाद जैसे बड़े शहर में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश राज्य भी सूती वस्त्र उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि अहमदाबाद, मुंबई और पुणे में सूती वस्त्र उद्योग को केंद्र होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। आखिर इनको क्यों वहाँ पर लगाया गया। कोई भी इंडस्ट्रीज जो होती है वो किसी विशेष स्थान पे ही क्यों लगाए जाते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर एक क्लास के बच्चों के लिए कि कोई भी चीज़ होती है उनको उनके स्थान पे ही क्यों लगाए जाते हैं, कुछ विशेष स्थानों पर ही क्यों लगाए जाते हैं। तो ये देखिए अहमदाबाद, मुंबई, पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग को केंद्र होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। क्योंकि जो है गन्ना की खेती किसी विशेष स्थान पर क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है, कोई भी जो मिल है वहाँ क्यों लगाए जाते हैं। तो कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ आदर्श दशाओं की आवश्यकता होती है। तो इसी आदर्श दशाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन कई रूपों में हो सकता है, कई क्लासों के बच्चों के लिए हो सकता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी उद्योग के लिए आदर्श चीज़ें दशाएं क्या होती है। तो पहले आदर्श दशाओं की बात करें हम तो कच्चे माल की उपलब्धता है। देखिए कच्चा माल जहाँ पर मिलेगा वो उद्योग वहीं पे स्थापित किया जाएगा, ये पहला पॉइंट है। इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर ही ये उपलब्ध है। दूसरी बात है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी निवेश के लिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद ऐसे स्थान हैं जहाँ आसानी से उद्योग में पूंजी लगाने की सुविधा उपलब्ध हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो परिवहन के साधन। देखिए कोई उद्योग वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ पर परिवहन का ना सुविधा बहुत आसानी से हो जाए। ये नहीं कि वहाँ पर परिवहन का सुविधा ही ना हो, तो वहाँ पर तो लगाना ही संभव नहीं है। इसलिए परिवहन जो है साधन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र देश के अन्य भागों के सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, अंततः उत्पादित वस्तुओं का परिवहन आसान हो, इसलिए ये आदर्श होते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगले पॉइंट की बात करें हम तो चौथा पॉइंट ये दर्शाता है कि बाजार की निकटता। कोई भी उद्योग वहाँ लगाया जाता है उसके आसपास अच्छा खासा बाजार हो, जिससे कि आधे से अधिक सामान जो है उसी क्षेत्र में खपत हो जाए। तो इससे जो है परिवहन का पैसा भी बच जाता है और सामान की जो है कीमत भी नहीं बढ़ती है, लोग आसानी से खरीद भी लेते हैं। तो बाजार की निकटता चौथी पॉइंट के रूप में है। कहते हैं वस्त्र उत्पादों को बेचने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बड़ा जो है बाजार उपलब्ध है। विकसित परिवहन के साधनों द्वारा वस्त्र उत्पादनों के देश के अन्य बाजारों एवं विदेशी बाजारों तक भेजने में आसानी रहती है। आजकल सूती वस्त्र उद्योग को संकेंद्र के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यानी बाजार को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए। उसके पश्चात है पंदनियों की निकटता। यानी पंदनियों की निकटता क्या है। कहते हैं मुंबई पतन द्वारा विदेश में मशीनरी तथा अच्छी किस्म की कपास की आयात करने और तैयार माल को निर्यात करने में आसानी रहती है, इसलिए इसको समुद्र उपबंध के किनारे ही स्थापित किया जाता है। यहाँ पतनों का अर्थ होता है समुद्र के निकट, ठीक है। और मुंबई तो आपको पता है कि समुद्रों के निकट ही है, इसलिए यहाँ से जो है विदेशों में आयात करना, निर्यात करना बहुत ही सरल हो जाता है। उसके पश्चात आता है छठवां पॉइंट सस्ते श्रमिक। देखिए कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर श्रमिक जो है सस्ते हो, यानी अधिक पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता न हो, तो इसलिए ज़रूरी है। कहते हैं सस्ते एवं कुशल श्रमिक आसपास के क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हों, ऐसे ही क्षेत्र में जो है फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद सातवां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है ऊर्जा की उपलब्धता।
यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो, यानी यहाँ सस्ती एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो, तो इस क्षेत्र में एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो 7 पॉइंट थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई भी जो है कारखाना स्टार्ट करने के लिए ये 7 पॉइंट जो होना अनिवार्य होता है और ज़रूरी भी होता है। अगर ये 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग होगा तो फैक्ट्री लगाना संभव नहीं रहता है और इससे जो है बहुत बर्डन पड़ जाती है। तो ये आदर्श चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए कोई भी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होती है और बनाई जाती है। तो ये बहुत हमने इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा किया और ज़रूरी भी था। द नेक्स्ट sugar industry. There is important here sugar industries. Sugar industry is the second largest agro-based industry of India. There is an important point. The second largest agro-based industry of India, the sugar industry. If we take a gur and kham, dasari and sugar together, then the India become the largest producer of sugar production in the world. That is important. And in 2003, there is about 453 sugar mills in the country. You know that 2003 is the 453 sugar mill in the country of India, and this industry is employed about the 2.5 lakh people. There is job here, 2.5 lakh people. There are sugar mill here. And the next year production. Production is important. The production of sugar depend upon the production of sugar cane and fluctuate, and with there is a fluctuations in the production of sugar cane. The total sugar production in the 2050 to 51 was 11.3 lakh ton. There is an important point. 2050 to 51 there are 11.3 lakh ton. It increased to be to 201.32 lakh ton in the 2003 to 2002. There is important here. The important 2002 to 2003 is the 101.32 lakh ton per day increase in production here. And in 2003 to 2004, it is a fell down to the 138 lakh ton. That is important. The next year distribution. The most of the sugar mill are concentrated in a 6 state, namely Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh. There is a main here 6 state in India. There is the name of Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh. The first state here, Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, it is a hold a significant position in the production of sugar. The sugar mill are highly concentrated in the western Uttar Pradesh in the district of Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Bijnor, and Moradabad and Bulandshahr. There is a most important there are district here. The sugar cane is factory here. In the eastern Uttar Pradesh is the Deorai, Basti, Gonda, Gorakhpur are important center here. Uttar Pradesh has the largest area under to sugarcane cultivation here. It has about half of the total area under sugarcane cultivation, but it was able to produce only 1/3 of the total production of sugar in 2003-2004 in the country. Evidently, their per hectare production as well as sugar content in a produce are relatively is very low. The next year, Maharashtra. Maharashtra is the most important state in the peninsular India, producing about 1/4 of the total sugar production in India. 1/4 is important here. A major center of the sugar production are Nasik, Pune, Satara, Sangili, Kolhapur, and Solarpur. There is the most important Maharashtra state here. And Andhra Pradesh is also important. The east and west Godavari is a Vasakha is a Platinum. Nizamabad, Medak, and Chittor is a district are the center of the sugar mill in the state. There is an important, and also Tamil Nadu. Tamil Nadu in there is a Tamil Nadu is a north and south are caught Madurai, Coimbatore, and the Tiruchirappallis are the important district for us sugar production. The next year, Karnataka. Karnataka it is also the important sugar producing state. The Belgulams, Madhya, Biljupur and Bellary and Simonga and the Chitradurga are the sugar producing district here. The Karnataka is the main district here, but Bihar, Gujarat, Punjab, Haryana, Rajasthan are other states where sugar mill are localized. That is important.
The following are the factor for localizations of sugar industries here. There is a most important factor here. First factor here, sugar cane is a mainly raw material for the making of sugar. Sugar mill can be set up only in the sugar cane producing area. Sugar can get dry soon after harvesting. That is important. Sugar can get dry soon after the harvesting. It can be neither be stored nor kept for a long period of time. The sugar cane should be taken immediately to be sugar mill after harvesting. There is a most important point here. And second point here, transportation cost of sugar cane is very high. And generally sugar cane is transported to through the bulk cart and which can carry it is up to 20 to 25 kilometer. Recently, a tractor, trolley, and trucks has been to used to carry of sugar cane to be a sugar mills. There is important. And besides this factor, capital, market, labor, and power also play an important role of significance on the a factor of sugar cane industries. The next reason for a shifting of sugar industry from northern India to peninsular India here. Over the period of sugarcane industry is gradually shifting from a northern India state to state in a peninsular India. Some of the important reasons are flowing here. The first reason here, the production of sugarcane per hectare is higher in a peninsular India. In fact, sugarcane crop growing well in the tropically climate of South India. That is important. The next year, the sucrose is a content is a higher in the tropical variety of sugar can grow in the south. The next year, the crossing season in the South India is a longer than in the North India. And the next, in the South India, most of the mills have a modern machinery here. And the next year, most of the mills in a peninsular India are a cooperative sector and where a benefit of maximize in the not be a solely objective. Very important. An important point arrived in this box. There is notable point, not your notebooks. There is a most important point here. Agro-based industries use agriculture production as their raw material. A cotton textile industry is the largest industry of organized sector of India. And cotton textile industry is widely distributed in India, and the large number of sugar mill are localized in Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat and Bihar. देखिए कहते हैं कि चीनी जो है, चीनी के बिना रहना भी मुश्किल पड़ जाता है और चीनी अधिक हो जाए तो जीना भी दुश्वार हो जाता है। तो कहते हैं चीनी का जितना महत्वपूर्ण हमारे आज समाज में बन गया है उतना किसी और चीज़ का नहीं है। लेकिन चीनी का कृषि किस प्रकार होता है, इसका क्या क्षेत्र है और कैसे ये विकसित होती है, इसके बारे में जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि चीनी उद्योग ऐसा उद्योग होता है जहाँ पर जो है बहुत से लोगों को जो है कार्य मिल जाते हैं। और कहते हैं हमारे देश में जब चीनी मिलें बंद हो गई तो बहुत से लोग जो थे बेकारी के जीवन जीने लग गए और कई लोगों का जो है अपना जीवन भी चलाने के लिए रह नहीं गया। तो यही यहाँ पर चीनी उद्योग के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं, चीनी उद्योग के अंतर्गत। तो देखिए चीनी उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और भारत के लिए महत्वपूर्ण और भी बढ़ जाता है। कहते हैं भारतीय कृषि आधारित उद्योगों में चीनी का उद्योग का जो है दूसरा स्थान है। यानी भारत के हम देखो उद्योगों में तो चीनी का जो है दूसरा स्थान है उद्योग में। अगर हम गुड़, खासारी और चीनी तीनों के उत्पादन में जोड़कर देखें तो भारत विश्व में चीनी उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यानी गुड़, खासारी और चीनी तीनों को अगर हम मिला दें तो भारत जो है विश्व में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन जाएगा। सन 2003 में हमारे देश में लगभग 453 जो है चीनी के कारखाने थे। यानी देखिए 2003 में हमारे देश में 400 यानी 450 से अधिक चीनी कारखाने थे और इस उद्योग में लगभग 2.5 लाख लोग लगे हुए थे। यानी देखा जाए तो 2,50,000 लोग जो थे इसमें इंक्लूड थे। कहते हैं चीनी उद्योग ने बहुत से लोगों को जॉब जो है प्रोवाइड्स किया है। उसके पश्चात आता है उत्पादन। देखिए उत्पादन की अगर अंतर्गत बात करें हम तो कहते हैं चीनी उत्पादन का सीधा संबंध गन्ने के उत्पादन से ही है। कहते हैं अगर गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है तो जनरल सी बात है चीनी का भी उत्पादन अच्छा ही होगा। चीनी के उत्पादन में उतार चढ़ाव गन्ने के उत्पादन के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। सन जो है
1950-51 में चीनी का कुल उत्पादन जो था 11.3 लाख टन था। वहीं 2003 और 2002 में जो है यह बढ़कर 201.32 लाख टन हो गया। परंतु देखा जाए तो 2003 से 2004 में यह घटकर जो है 138 लाख टन रह गया। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा गिरावट क्यों दर्ज की गई, क्योंकि चीनी के लिए कहते हैं अगर चीनी अगर चाहिए तो गन्ने के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, और गन्ने का उत्पादन जो है एक बहुत ही विशेष बातों पे जो है मायने रखती है। इसके लिए अगर आप गन्ने को अगर काट देते हो, अगर उसको वहीं पे धूप में छोड़ देते हो तो उसके सारे रस जो होते हैं सूख जाते हैं। इसलिए इसका एक आदर्श रूल ये होता है कि जैसे ही आपने शुगर कैन को काटा वैसे ही उसको फैक्ट्री में पहुंचा के उसमें से जो है रस को निकाल लीजिए, तभी जो है वो बेनिफिशियल है, नहीं तो वो बेनिफिशियल नहीं है और इससे जो है बहुत नुकसान पहुंच जाता है। तो देखा जाए 2003-2004 में जो है काफ़ी गर्मी पड़ी थी, जिसके कारण जो है गन्ने का जो है वास्तविकता मिट गई थी और इसके जो है उत्पादन घट के 138 लाख टन ही रह गई थी, जो कि 2003 और 2 और 3 में देखा जाए तो 201.32 लाख टन था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने जो कम गई, इतने जो डिक्रीसिंग हुई, इनका बहुत बड़ा जो प्रभाव था कि भारत के लोगों पर पड़ा था इसके उत्पादन के अंतर्गत। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष वितरण। देखिए वितरण का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो है चीनी जो है मिल्स, चीनी के कारखाने किस किस राज्य में जो है महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, तो इसी के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। कहते हैं वितरण की बात करें तो चीनी के अधिकांश कारखाने 6 राज्यों में ही संकेंद्रित हैं, और यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी देखा जाए तो भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर जो है चीनी उद्योग पे खूबी लगाई गई है। तो चलिए देखते हैं एक बाई एक इसके जो है देश राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही नाम आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है गन्ना उत्पादन में बहुत ही अग्रसरणीय है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहते हैं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर चीनी के कारखाने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, मुरादाबाद और बुलंदशहर जिलों में सब केंद्रित है। तो ये सारे जो ज़िले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जो है चीनी के कारखाने जो है बासुविधा देखा जा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर जिले जो हैं चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र आते हैं, लेकिन यह राज्य 2003 से 4 में जो है भारत के कुल चीनी उत्पादन का केवल 1/3 भाग का ही उत्पादन कर सका, और यहाँ पर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और गन्ने में चीनी का अंश भी कम है। तो जैसे कि आपने ऊपर भी देखा था कि 2003 और 4 में जो है चीनी का उत्पादन सिर्फ 138 लाख टन था। तो इसका कारण भी यही था कि उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का अच्छा कृषि नहीं हुआ और सारे के सारे जो है गन्ने सूख गए थे, और देखा जाए तो सिर्फ 1/3 भाग ही गन्ना का उत्पादन कर सका, और यहाँ गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और गन्ने में चीनी का अंश भी कम था। इसलिए 2003 और 4 में जो है इतनी गिरावट देखने को मिला। उसके पश्चात आता है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है। यहाँ चीनी का उत्पादन देश के सकल उत्पादन के 1/4 अंश के बराबर होता है, यानी 1/4 के बराबर, यानी 4 अगर हिस्सों से अगर दूसरे जगह से मिल रहे हैं तो एक हिस्सा जो है महाराष्ट्र से ही हमें प्राप्त हो रही है। महाराष्ट्र राज्य में चीनी उत्पादन के प्रमुख केंद्र जो है नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर जो है चीनी उत्पादन जो है बहुत ही उच्च कोटि की जाती है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो पूर्वी एवं पश्चिम गोदावरी, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, मेडक और एवं जो है चित्तूर जिले इस राज्य के चीनी उत्पादन के केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है इस राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण जो है आरकोट, मदुरै, कोयम्बटूर और जो है चित्रपल्ली चीनी उत्पादन के महत्वपूर्ण जिलों में से माना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है कर्नाटक का स्थान। देखिए कर्नाटक जो है ये भी एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य है, और इस राज्य के जो है बेलगामा, मंड्या, बीजापुर, बेल्लारी और शिमोगा और जो है चित्रदुर्ग जिले चीनी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श केंद्र है। और कहते हैं बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अन्य राज्य हैं जहाँ चीनी मिलें अव्यवस्थित है।
कहते हैं यहाँ पर भी चीनी मिल है लेकिन अव्यवस्थित है। पुराने समय में यहाँ पर चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन आज जो है ये चीनी मिलें सारे बंद हो चुकी है। तो अव्यवस्थितता का यहाँ रूप देखा जा सकता है बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अन्य राज्यों में। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के निम्नलिखित कारक होते हैं। देखिए, चीनी उद्योग को स्थानीयकरण करने की क्या कारण हो सकते हैं। आखिर चीनी जो है उद्योग हर उस क्षेत्रों में क्यों नहीं होती जहां गन्ना नहीं होता है, तो ये सब बातों पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, चीनी निर्माण में गन्ना ही एक प्रमुख कच्चा माल होता है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए गन्ने का ही उपयोग किया जाता है। अंततः चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही हो सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चीनी मिलों की स्थापना जो है गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही किया जाए तो ही अच्छा रहता है और वो तभी बेनिफिशियल भी हो सकता है। गन्ने की फसल काटने के बाद ना तो गोदाम में रखी जा सकती है और न ही उसे काटने के बाद खेत में अधिक समय तक छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वह जल्दी से सूखने लग जाते हैं। इसलिए जो है फसलों की कटाई के बाद गन्ना को तुरंत जो है चीनी मिलों में भेजना आवश्यक होता है, तभी जो है इसका सही उपयोग किया जा सकता है और सही रस भी जो है निकाला जा सकता है। अगर आप काट के खेतों में छोड़ देते हो तो वो आपके लिए कोई कीमत नहीं देगा। अगर गोदाम में भी रखा जाता है फिर भी नुकसानदायक है। इसलिए ये होता है कि गन्ना जिस क्षेत्र में हो वहाँ पर कारखाने लगाए जाए और वहाँ के जो है गन्ने के रस जो है बखूबी निकाला जाए, जिससे कि है चीनी के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण गन्ना का स्थान हो सकता है। इसलिए जो है मैक्सिमम जगह जो है उन क्षेत्रों में चीनी मिलें लगाई जाती है जहाँ पर जो है गन्ना का उत्पादन होता है, और ये आसान भी रहता है और बहुत ज़रूरी भी रहता है। कहते हैं गन्नों का परिवहन भी बहुत महंगा होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गन्ना जो होता है काफ़ी हैवी मटेरियल्स है, यानी काफ़ी वज़न होती है, इसलिए इसका परिवहन करना भी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आमतौर पर गन्ने को जो है बैलगाड़ियों में लाद कर जो समीप स्थल चीनी मिलों में भेजा जाता है और इससे सामान्यतः जो है 25 से 30 जो है किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। अब गन्नों के चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रकों का प्रयोग भी किया जाने लग गया है, और इस प्रयोग दो कारकों के जो अलावा पूंजी की उपलब्धियां जो है, विपणन की सुविधाएं और सहज और सस्ते मजदूर का मिलना और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि कारक है जो चीनी मिलों को स्थानांतरित करने को काफ़ी प्रभावी एवं नियंत्रित भी करती है। तो ये बहुत ही आदर्श बात यहाँ पर आया है कि कोई भी अगर चीनी मिल जो है कारकों में देखा जाए तो कहते हैं पूंजी की उपलब्धियां होना जरूरी है, विपणन की सुविधाएं होना चाहिए, सहज और सस्ते मजदूर को मिलना, सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता इत्यादि होती है, जो कि गन्ना मिल लगाने के लिए बहुत ही आदर्श जो है समय और मुहैया कराता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष उत्तरी भारत के क्षेत्र में चीनी उद्योग के भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के कारण क्या है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी भारत के क्षेत्र में चीनी उद्योग के जो है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के क्या कारण हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से चीनी उद्योग का क्रमिक रूप से धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र से हटकर भारतीय प्रायद्वीपों के राज्यों में स्थानांतरित हो रहा है, और इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं। तो पहला कारण तो यही है कि प्रायद्वीपीय भारत में गन्ने की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारतीय क्षेत्र से अधिक है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रायद्वीपीय भारत में गन्ने की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारतीय क्षेत्र से अधिक है। वास्तविकता तो यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की पैदावार के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वैसे यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की पैदावार के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। सकरा सुक्रोज की मात्रा जो गन्ने की मिठास को नियंत्रित करती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल में आवश्यकता अधिक होती है। तो ये आप समझ सकते हो कि सकरा सुक्रोज की मात्रा जो गन्ने की मिठास को नियंत्रित करती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। गन्ना परोपण की अवधि जो है दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा लंबी भी होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि गन्ना जो पेरोपण की अवधि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा थोड़ा लंबी होती है, और दक्षिण भारत में अधिकांश चीनी मिलें में जो है आधुनिक उपकरण के प्रयोग में लाए जाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आया है। यदि पाँचवा अगर पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की अधिकांश मिल की स्वामित्व जो है सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ मुनाफा को अधिक से अधिक करने का न तो लक्ष्य होता है और न ही प्रवृत्ति होती है। तो ये सबसे बड़ा जो है
गलत बात है, जिसकी वजह से जो है चीनी मिलों का जो है अधिक विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सहकारिता क्षेत्र होने के कारण जो है अधिक मुनाफा कमाना या ना ही तो कोई लक्ष्य होता है और ना ही कोई प्रवृत्ति होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ा कर सकता है आने वाले समय में। उसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आया है एक बॉक्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसको सारांश के रूप में आप देख सकते हो, निष्कर्ष के रूप में देख सकते हो, कंक्लूजन भी आप सोच सकते हो। तो इस पॉइंट को अगर नोट कर लेते हो तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि इस पॉइंट में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं हर क्लास के बच्चे, हर एक कंपटीशन के बच्चे इस बात को नोट करके जो है वो अच्छे एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए शॉर्ट के रूप में देखा जाए तो यही है कि कृषि आधारित उद्योग जो है कृषि उत्पादन के कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जो है उद्योगों में जो है उत्पादों को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत के संगठित क्षेत्र में सूती कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। यानी भारत के संगठित क्षेत्र में देखे जाए तो सूती कपड़ा उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग है, और दूसरा नंबर पर जो आता है गन्ना उद्योग आता है। यानी गन्ने का जो है दूसरा स्थान पे यहाँ पर स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का अधिकांश राज्य में अव्यवस्थित है। यानी सूती वस्त्र उद्योग जो देखा जाए तो बहुत से राज्य में कम है लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में चीनी मिल जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा बिहार राज्य में स्थापित है। तो ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण ये सिलेबस के अंतर्गत था, जिसको हमने विचार किया, चर्चा किया और जानने की कोशिश किया। दोस्तों अगर ये बात सारी आपको समझ में आया तो ज़रूर इतना कीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके आपने इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप तिरपान स्टडी सेंटर को इसी रूप में हेल्प कर सकती हो। अगर हेल्प करने का देखिए जब मौका मिले तो कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ पाते हो कहीं से तो कुछ आपको देना भी चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि आप वीडियो को शेयर करके आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक आपको तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। तो इससे अच्छा यही है कि आप तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लो। अगर आप सेव कर लेते हो, जब चाहे जब मर्जी आप जो है इसके होम पेज पे सारे वीडियो देख सकती हो। अगर आपको सिलेबस के अंतर्गत देखना है, चैप्टर के अंतर्गत देखना है या क्लास के अंतर्गत देखना है, तो आपको पता है कि 8 से जो है MA तक के सारे वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और वहाँ पर सभी वीडियो का जो है फ़ायदा उठाइए। अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई बातें आप चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, कुछ गलतियाँ इसमें लग रही है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट कीजिएगा तभी गलतियों को सुधारा जा सकता है।